Hello everyone. Have you ever wondered how does a magnifying glass is able to burn a paper when the sunlight is incident on it? कभी ये सोचा है कि how does your parents are able to read the newspaper with the help of a lens? All this is possible with the help of convex lens. Welcome to today's lecture where we are going to see the ray diagrams for convex lens. And what properties does it exhibit, applications does it exhibit which is helpful in our daily life. This video is carefully designed so that you will be able to understand how does a ray diagram works with the help of animation. Before going into the image formation of the convex lens, first we need to understand how the ray works in a convex lens. For that, we need to understand how the rules for image formation in a convex lens are. तो सबसे पहला जो रूल है, it is quite similar to your concave mirror. अभी concave mirror में रूल क्या था? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, after reflection, it is going to pass through focus. Now, similarly, in a lens, refraction happens, reflection does not happen. So, the rule will change a little bit. तो rule यहाँ पे क्या है? If the incident ray is parallel to principal axis, after refraction, it will pass through the focus on the other side of the lens. Now, बच्चों, याद रखना, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, तो अपन ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी रख सकते हैं. तो जब अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो वो कभी भी दूसरे साइड में रे जाएगा. तो ऑब्जेक्ट और ये जो प्रिंसिपल फोकस है जहां से रे जा रहा, दोनों लेंस के अपोजिट साइड में है. तो अगर ऐसा तुम्हारा रे जा रहा है तो रिफ्रैक्ट होके वहां पे जाएगा. कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था? इट वाज कमिंग बैक वेयर द ऑब्जेक्ट वाज, बट यहां पे वैसा नहीं होता है. ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट विल गो ऑन द अदर साइड. सो in a proper words, the rule will be a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. Now we will move on to the second rule for the image formation. Now the second rule is the vice versa of the first rule. So पहला रूल क्या है कि बाबा इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से जाएगा. Then the vice versa of it will be if the incident ray is passing through focus after refraction it will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब क्या है कि अगर अपना इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? वो पैरेलली रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को एंड इट विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए अपन दूसरे साइड में जा रहे हैं. रिफ्लेक्शन में अपन वही साइड में आते हैं. तो रूल को प्रॉपर टर्म्स में अपन बोलते हैं अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. Now we'll see the third rule, which is very simple and which makes our image formation also simple. इसके वजह से अपने को image formation बहुत simple बनते हैं. That is, when the incident ray is passing through optical center, it will go undeviated. इसका मतलब अगर ये optical center से जा रहा है तो ये सीधा जाएगा. जब अपन रे डायग्राम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, पर ऐसी केस नहीं है. ये एक फेज है अपना और ये एक सरफेस है. तो ये दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन ऐसा हो रहा है कि नेट रिफ्रैक्शन इज बिकमिंग जीरो एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सीमिंग दैट इट इज गोइंग अनडेविएटेड. अगर अपने को प्रॉपर वर्ड्स में इसको बोलना है तो क्या बोलेंगे कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. Now we will move on to the actual image formation in a convex lens. अगर आप लोगों को याद है अपन ने कॉन्केव मिरर में कितने इमेज फॉर्मेशन देखे थे? 6. सिमिलरली अपन यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे दे विल बी टोटल इन 6. तो पहला इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में क्या था? When the object is kept at infinity. Similarly, in this particular convex lens, the first case is when the object is kept at infinity. Now, this is your simple convex lens where the focuses are there and the center of curvature which are represented by 2f1 and 2f2.
तो मैंने वो लेक्चर में बोला था आपको, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो एक बार उसको देख लीजिए। whenever object is at infinity, all the rays coming from it are going to be parallel to principal axis. So similarly यहाँ पे भी वही होने वाला है। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तब रे तुम्हारे क्या आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल क्या है अपना, कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो कहां से जाते हैं, फोकस से। सो दीज रे विल पास थ्रू फोकस। तो अगर ये फोकस पे कन्वर्ज हो रहे हैं तो दे आर मीटिंग एट फोकस, तो अपना इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ, फोकस। जस्ट लाइक योर कॉनकेव मिरर। तो यहां पे रेज अपने एक्चुअल मीट हो रहे, तो ये कौन सी इमेज चाहिए, यस इट विल बी अ रियल इमेज, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज inverted, and as you can see that the image will be point size, or we can say that it is highly diminished. So when we are talking about the position of image, it will be at f, and the nature of image will be real, inverted and highly diminished or point size. देखो अगर अपन ने नेचर देखा और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, इट इज एग्जैक्टली एज इट कॉनकेव मिरर, बट रे डायग्राम तुम्हारी चेंज हो रही, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। वहां पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे अपना कॉन्वेक्स लेंस है। तो कीप दैट इन माइंड, डोंट मेक मिस्टेक व्हाइल ड्राइंग अ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस. The second image formation in a convex lens is there when the object is kept at beyond 2f1. मिरर में क्या था, when the object was beyond center of curvature. तो similarly वहां पे जैसे center of curvature है, यहाँ पे है तुम्हारा 2f1. So now in a mirror all the distances were measured from pole. तो similarly in lenses all the distances are measured from optical center. So हम जब बात कर रहे हैं beyond 2f1, अपनी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहाँ तो भी रहनी चाहिए. So अपनी ऑब्जेक्ट है AB. Now to obtain an image, as we have already discussed in the previous videos, if you have not seen it, please see it, that to obtain an image अपने को कभी भी दो रेज लगते from the same point. तो अपन ने तीन रूल देखे हैं, तो तीन में से अपन कौन से भी दो रूल यूज कर सकते हैं. तो अपन पहला और तीसरा रूल यूज करेंगे. पहला क्या है, when the incident ray is parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus, whereas the third rule says if the incident ray is passing through optical center, it will go undeviated. So they are meeting somewhere between f2 and 2f2. So the image will form between f2 and 2f2, that is a dash and b dash. देखो रेज एक्चुअली मीट हो रहे, मतलब इमेज क्या है तुम्हारी, रियल इमेज है. रियल है, इन्वर्टेड है, दैट इज उल्टी. और अगर अपन ने हाइट्स को कंपेयर किया तो अपनी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है. सो वी कैन से दैट इट इज diminished. So we can say that the position of image is going to be between f2 and 2f2, and the nature of image is going to be real, inverted and diminished. Similar to the image formation of concave mirror, when the object was kept beyond C, we got the same nature, but the position of image there was between F and C, but the nature of the image was same, that is real, inverted and diminished. The third image formation in a convex lens is when the object is kept at 2f1. Now similar to this in a concave mirror, अपन ने देखा है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहती है तो नेचर ऑफ इमेज क्या मिलता है अपने को, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. Now we'll see what happens when we keep the object at 2f1 in a convex lens. So ये अपना convex lens है, अपन ने ऑब्जेक्ट 2f1 पे रख दी AB. अपने को कितने रेज चाहिए, दो रेज. तो अपन पहला और थर्ड रूल यूज करेंगे. पहला रूल क्या है, incident ray is parallel to principal axis, it will pass through focus on the other side of the lens. और दूसरा रूल क्या है कि वो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से. तो अभी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे वो कहां पे मीट हो गए, यहाँ पे मीट हो गए, तो मतलब अपना इमेज फॉर्मेशन वहां पे बनेगा. तो इमेज फॉर्मेशन बना a dash b dash which is at 2f2. इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2f1 पे तो इमेज कहां पे, 2f2 पे. रेज एक्चुअली मीट हो रहे, मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड. अगर साइज को कंपेयर किया तो इट इज सेम साइज. इसका मतलब अपने को यहां पे भी नेचर क्या मिल रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. सो द when object is kept at 2f1 in front of a convex lens, we are going to get image at 2f2, and the nature of image is going to be
रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। पर अगर ये रे डायग्राम निकालने को एक दिक्कत है, क्योंकि इमेज की पोजीशन क्या है तुम्हारी एग्जैक्ट है। तो अपन एक ट्रिक सीखेंगे कि अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अपन एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज सेम साइज की ऐसे इन्वर्टेड बना लेंगे। और उसके बाद इनके जो हेड्स है वे विल कनेक्ट देम। तो जहां पे भी वो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है वो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। और वहां पे क्या करेंगे अपन, ऐसा एक लेंस बना देंगे। तो फिर दूसरा रे कैसे लेंगे, अपन एक रे पैरेलल लेंगे और इसको और इसके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जहां पे ये हो रहा, दैट इज गोइंग टू बी f2, दिस इज गोइंग टू बी 2f2। यहाँ कहां तो भी मिड पॉइंट पे f1 रहेगा और दिस विल बी ट्वाइस f1। दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रे डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे इमेज एग्जैक्ट है। अपन यहाँ पे भटक नहीं सकते, क्योंकि पहले के रे डायग्राम में देखा कि ऑब्जेक्ट वाज फॉर्मिंग बिटवीन f2 एंड 2f2। इट वाज अ रिलेटिव पोजीशन, नॉट एग्जैक्ट पोजीशन। यहाँ पे एग्जैक्ट है। तो कभी भी अगर एग्जाम में ये आई तो आप इस ट्रिक से बना सकते हो, क्योंकि फिर एग्जामिनर को पता नहीं ना कि आपने कैसे बनाए, उसको सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए। तो उसको एंड रिजल्ट यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ image formation. So, what is the fourth image formation? That when the object is kept between f1 and 2f1, similar to the concave mirror when the object was kept between focus and center of curvature. वहां पे नेचर क्या मिलता था अपने को, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट को क्या किया, f1 और 2f1 के बीच में रख दिया। तो अगर अपन ने यहाँ पे f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया तो अपने को इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रेज चाहिए, दो। तो पहला रे क्या रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरा क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो वो कहां पे मीट हुए, यहाँ पे मीट हुए। तो अपनी इमेज कहां पे बनेगी, वहां पे बनेगी। तो अपना इमेज क्या रहेगा, a डैश b डैश। सो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2f2, क्योंकि डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हो रहे। तो बियॉन्ड 2f2 और रेज एक्चुअली मीट हो रहे। तो नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल, इन्वर्टेड। और अगर साइज को कंपेयर किया तो इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, सो इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड enlarged. So we can say that when the object is kept between f1 and 2f1, the image is formed beyond 2f2 and the nature of image is going to be real, inverted and enlarged, similar to the image formation of concave mirror when the object was kept between f and c. यहाँ पे देखिए, जब अपन ने ऑब्जेक्ट 2f1 के बाहर रखा था तो इमेज मिल रहा था अपने को f2 और 2f2 में। जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड 2f2 मिल रहा है। सो यहाँ पे भी वाइस वर्सा केस है, अगेन सिमिलर टू दी कॉन्केव मिरर। द नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट f1। सो देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को f1 में रखा तो अपने को कितने रेज चाहिए, दो। पहला रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, दूसरा रे है अपना ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को क्या हो गया, पैरेलल। तो दिस इज अ केस सिमिलर टू द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। तो अपन ने अज्यूम क्या किया था वहां पे कि इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होती। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या अज्यूम करेंगे अपन, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और अगर इंफिनिटी पे ये मिलने वाले हैं तो नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। सो देखिए, even though the rays are parallel, why we are saying that they are going to meet at infinity, but the math says parallel lines cannot meet. See, the rays are actual phenomena. So there are certain instances where the light rays bend. So we assume that because of certain phenomena, they might meet at infinity. Whether they'll meet or not, we are not sure. But for a convenience purpose, अपन ने क्या लिया है कि वो f1 पे meet होंगे। The last image formation in a convex lens is when the object is kept between f and o. See, अगर अपन ने कॉन्केव मिरर के साथ कंपेयर किया तो वहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो वहां पे नेचर ऑफ इमेज क्या मिल रहा था अपने को, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो अपन अभी देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में अपने को क्या मिलता है। सी, ऑप्टिकल सेंटर f1 यहाँ पे, तो अपन ने ऑब्जेक्ट उसके बीच में रख दी, ए बी। रेज कितने लग रहे हैं अपने को, दो। पहला
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि ये साइड, ऑन द अदर साइड द रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उसके वजह से वो वहां मिल नहीं पा रहे। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे। तो वो कहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं अपने को पीछे, ये रीजन में। तो अपनी इमेज वहां पे फॉर्म होगी, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। तो देखो यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट हो रहे हैं क्या, नहीं, अपन उसको मीट करवा रहे हैं, दिस इज द अपीरेंट मीटिंग। सो इमेज क्या रहेगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कभी भी इरेक्ट होती है, और इरेक्ट होने के कारण अपन बोल सकते हैं कि वो वर्चुअल है। इट इज अ वाइस वर्सा केस। अगर अपन ने साइज को कंपेयर किया तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। और पोजीशन ऑफ इमेज सबसे ये कि अपने ये पर्टिकुलर केस में F1 और 2F1 के बीच में हो रहा है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन विल बी on the same side of the object, or we can say that on the same side of the lens where the object is kept. तो इसका एक फिक्स नहीं रहेगा, इसकी पोजीशन रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू F1 एंड वो चेंज होगी। तो इसको अपन फिक्स नहीं रखेंगे, अपन क्या बोलेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। बट नेचर ऑफ लेंस इज, नेचर ऑफ इमेज इसका फिक्स रहेगा, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। उसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं। यहाँ पे आपके 6 रे डायग्राम विद द कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट होते हैं। तो ये रे डायग्राम जो अपन ने देखे, अपन इसको प्रैक्टिकली कहां पे यूज करते हैं, तो विल सी एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, वहां पे अपन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। सो पहला लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्या है, जिन भी लोगों को हाइपरमेट्रोपिया रहता है या लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता है, जनरली योर पेरेंट्स, तो ये लोगों को नजदीक का देखने के लिए अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस हेल्प्स अस टू क्यूर देयर आई डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो जो सिंपल कैमरा रहता है वहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता टू फोकस। फिर आपका रहता ये मैग्नीफाइंग ग्लास बोल के यूज होता, इसको आप अपना जो वॉच मेकर्स है वो यूज करते हैं। देन इट कैन बी फाउंड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मूवी प्रोजेक्टर्स, जहां पे जैसे टेलीस्कोप में अपन दूर के स्टार्स देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में अपन छोटी सी चीजें मैग्नीफाई करके दे सकते हैं, मूवी प्रोजेक्टर अगर अपने को स्क्रीन में कुछ देखना है तो वो देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मूवी प्रोजेक्टर में स्पेशली क्या है, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। और हाइपरमेट्रोपिया में इसका यूज क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 रहेगी, तब कभी भी इमेज क्या बनेगी तुम्हारी, वर्चुअल एंड एनलार्ज, दैट इज इरेक्ट। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हाइपरमेट्रोपिया में काम में आती है। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर अपने को कॉन्सेंट्रेट करने हैं रेस, तो पहला जो रे डायग्राम की अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो फोकस पे मीट होंगे। सो ऑल द रेज विच आर कमिंग पैरेलली दे आर गोइंग टू मीट एट फोकस, सो द रे और द हीट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड देयर, और तुम्हारा पेपर जो होता है वो क्या होता है, बर्न होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का जो वॉच मेकर्स यूज करते हैं, दैट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 वेयर यू गेट वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। Stay tuned for the next lecture and please give your review and feedback. Thank you.